Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स देख लेते हैं। तो कैबिनेट अप्रूवल्स में पहला जाता है एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सेकेंड, एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज, जो कि आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर आती हैं। फिर तीसरा याद रखेंगे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, जो कि आपके गारमेंट्स एंड अपैरल्स पर जो भी टैक्स लेवी किया जाता है उस पर, फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल्स एंड गारमेंट्स। फिर फोर्थ याद रखेंगे फॉर द सप्लाई ऑफ मार्केटिंग मार्जिन फॉर द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस टू फर्टिलाइज़र। डोमेस्टिक गैस से फर्टिलाइज़र जो कि आपका यूरिया होता है, इसकी मार्केटिंग मार्जिन यहाँ पे अप्रूव किए गए प्रोवाइड कराने के लिए। एंड पांचवा याद रखेंगे इंडिया एंड यूएई, इन दोनों के बीच में अभी एक ट्रीटी साइन हुई, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था, करेक्ट, ये भी याद रखेंगे। तो ये कुछ आपके कैबिनेट अप्रूवल्स है, जस्ट फॉर अ रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहला, कौन सा एमबीए कॉलेज इसने टॉप किया इंडिया 2024 में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस कैटेगरी। तो किस वो कौन सा एमबीए कॉलेज है जिन्होंने भी टॉप किया। ये डाटा रिलीज़ किया गया था IIRF के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया, जिसमें बताया गया IIM अहमदाबाद जो कि है गुजरात में, इसने टॉप किया है अमंग द एमबीए कॉलेजेस इन द गवर्नमेंट कैटेगरी, राइट। अगर आप पूछूं मैं आपसे प्राइवेट कैटेगरी में किसने टॉप किया, यहाँ पर कौन से कॉलेज ने टॉप किया, तो वो है जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जो कि जमशेदपुर में है, करेक्ट, झारखंड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं IIM अहमदाबाद ने टॉप किया इन अमंग द गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया। और अगर मैं बात करूँ जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे MBA में टॉप किया। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकॉइस, इन्होंने सेलिब्रेट किया भी सिल्वर जुबली, एंड इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करते हुए इन्होंने एक सैटेलाइट डाटा फैसिलिटी लॉन्च की एंड एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प को यहाँ पे लॉन्च किया। अगर सैटेलाइट डाटा फैसिलिटी की मैं बात करूँ, ये एक कटिंग एज सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन रहेगा, जो कि ओशन सेट 3 आपकी एक सैटेलाइट है, इसका डाटा यहाँ पे कंज्यूम करेंगे एंड इसके ऊपर आगे अपना एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक माई इनकॉइस माई स्टैम्प भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकॉइस, इन्होंने न्यू सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी लॉन्च की, एंड क्योंकि जो ये ओशन 3 सेट से जो भी ये डाटा गैदर करेंगे, उस डाटा को प्रोसेस करना एंड उसका एनालिसिस करने के लिए, एंड इनकॉइस माई स्टैम्प ये भी यहाँ पे लॉन्च
किया गया ताकि सिल्वर जुबली जो कि 25 साल पे हम ऑब्जर्व करते हैं सेलिब्रेट किया जा सके। गोल्डन जुबली कब होता है? 50 साल पर। ठीक है, फिर इसी के बाद आ जाता है आपका इंडियन ओशन रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस। ये जो इंडियन ओशनल रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 में, याद रखेंगे ये अप्रैल के महीने में होगी और लोकेशन क्या रहेगी इसकी? स्पेन, बार्सिलोना। स्पेन बार्सिलोना में हमें ये देखने को मिलेगी 10 से 12 अप्रैल तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, इंडियन ओशनल रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने टॉप किया अमंग इंडियंस ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 इंडिया में। तो इंडिया में किन्होंने टॉप किया? वो है मुकेश अंबानी। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। एंड इनकी फर्स्ट रैंक तो रही नेशनल अगर इंडिया में बात करें, एंड सेकंड रैंक रही इनकी ग्लोबली। सेकंड रैंक रही ग्लोबली। ठीक है, एंड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। एंड ब्रांड फाइनेंस के ही द्वारा इनका एक बीजीआई ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स स्कोर दिया गया, वो है 80.3 का। तो अगर इनकी ग्लोबली सेकंड रैंक आ जाती है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेंगे ग्लोबली? वो है हुआटेंग मा। हुआटेंग मा याद रखेंगे, ये चेयरमैन है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ टेंसेंट होल्डिंग्स। टेंसेंट होल्डिंग्स ये लार्जेस्ट इंटरनेट चाइनीज इंटरनेट कंपनी है टेंसेंट होल्डिंग्स, करेक्ट। एंड ये वर्ल्ड के लीडिंग सीईओ भी कहे गए हैं इन 2024, करेक्ट। नेक्स्ट ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? डेविड हेग। लंदन यूके में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुकेश अंबानी ने टॉप किया अमंग इंडियंस एंड सेकंड रैंक रही ग्लोबली। ग्लोबली अगर बात करें टॉप किया हुआटेंग मा, जो कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चाइनीज इंटरनेट जायंट टेंसेंट होल्डिंग के। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक्सिम बैंक ने भी रिसीव किया 9013 करोड़ रुपीस फ्रॉम एमईए आफ्टर इन्वोकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज। तो अभी याद रखेंगे इससे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 9013 करोड़ रुपए दिए, हैज़ प्रोवाइडेड इतने करोड़ रुपीज टू एक्सिम बैंक आफ्टर द बैंक इन्वोक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज ऑन डेकेड ओल्ड लोन्स एक्सटेंडेड टू सम अफ्रीकन कंट्रीज। ये जो लोन्स है ना, इनको डाउटफुल डेब्ट बोला गया था और दे वर कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर दीज बैंक्स, एक्सिम बैंक हैड इन्वोक गारंटीज ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द लोन्स गिवन टू दीज अफ्रीकन कंट्रीज। एंड वंस ये गारंटीज अगर इन्वोक, जो फंड्स हैं वो पे किए जाते हैं ऑफ द गारंटीड रिजम्पशन फंड, करेक्ट। इसके साथ साथ याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली अलोकेट किया 4383 करोड़ रुपीस का एक फंड फॉर फिस्कल ईयर 25 फॉर पोटेंशियल फ्यूचर गारंटीज। एक्सिम बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? हर्षा बंगारी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिसिल रिपोर्ट पर। तो क्रिसिल ने यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी अभी प्रोजेक्ट की है वो कितनी की है फिस्कल ईयर 20, या फिर हम बोले नॉट फिस्कल ईयर 2024 से लेके 2031 साल के बीच में, इसके बीच में इंडिया की क्रिसिल के द्वारा कितनी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई? तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे बोला गया इंडिया ग्रो करेगा 6.7% से 2024 से 2031 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस पे आते हैं। नोगोलो मुम्बा टुक ओथ एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉलोइंग द डेथ ऑफ हेग गॉटरफिट, जो कि प्रेसिडेंट थे नामीबिया के। तो अब ये नोगोलो मुम्बा ये नए इंटर्म प्रेसिडेंट बन गए हैं नामीबिया के। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो चाइना के द्वारा अपने इनके 2 रॉकेट की मदद से एक में 9 सैटेलाइट्स और एक में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। जीलोंग 3 JIALONG जीलोंग 3 ये रॉकेट का नाम है और इसने अभी 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाया गया। फिर लॉन्ग मार्च 2C ये रॉकेट का नाम है और इन्होंने 11 गीली 02 सैटेलाइट्स को इन्होंने स्पेस में लॉन्च किया। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसीव किया पहला 25T BP टग यार्ड 305 महाबली को, राइट। ये एक टग रहेगा, इंडियन नेवी के द्वारा इसको रिसीव किया गया है, करेक्ट। एंड इट वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट द नेवल शिप यार्ड इन कोची केरला।
ये जो कॉस्ट का इसका कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन का, ये 3 ऐसी 25T BP टग्स का था जो कि सॉफ्ट शिपयार्ड को मिला था, राइट, जो कि एक मुंबई थाने बेस्ड MSME है, एंड नवंबर में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये है महाबली के अलावा अगर टग की बात करें, यार्ड 306 बलजीत, यार्ड 307 बजरन भी रहेंगे, करेक्ट। एंड ये IRS इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के रूल्स के हिसाब से इनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इंडियन नेवी ने भी कमीशन किया सर्वे वेसल लार्ज इंडियन नेवल शिप संध्याक को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह। तो अभी रिसेंटली किस इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया गया एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह? तो वो रहेगा INS संध्याक, करेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 4 सच सर्वे वेसल लार्ज शिप्स वॉज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE। ये जो शिप है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने एक अनवेल की है एक बुक, मतलब इन्होंने एक बुक को रिलीज किया जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके ऊपर इस बुक में बताया गया है। एंड इस बुक को लॉन्च किया गया था कहाँ पर? एट कलम एंड कवच। ये एक इवेंट था जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, इसके दौरान यहाँ पर इस बुक को लॉन्च किया गया, करेक्ट। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? अमित सिन्हा एंड विजय खारे जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एंड पेंटागन प्रेस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लॉन्च की एक बुक ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा बाय कुलदीप चंद अग्निहोत्री, राइट। ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इस बुक को अभी लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, राइट। एंड इस बुक को एडिट किया गया है कुलदीप चंद अग्निहोत्री के द्वारा जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के। इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, करेक्ट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को, ताकि पीस, टॉलरेंस, इंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडेरिटी, भाईचारा ये सारा बढ़ सके। एंड इस साल 2024 में हमने इसका 4th एडिशन ऑब्जर्व किया है, 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ऑल्सो याद रखेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे। वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं ताकि कैंसर से रिलेटेड उसके डिटेक्शन, उसके प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हम अवेयरनेस क्रिएट करा सकें। एक कैंपेन चल रहा है 2022 से 2024 तक, और उस कैंपेन की जो थीम रहेगी वो है क्लोज द केयर गैप, राइट। 2024 का ये 3rd एंड फाइनल ईयर ऑफ दिस कैंपेन। एंड जो कैंपेन थीम है ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की वो क्या है? क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, राइट। और यहाँ पे लेवेंडर रिबन, यहाँ पे आपका क्या रहता है? सिंबल रहता है, राइट, फॉर वर्ल्ड कैंसर डे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे में ब्लू एंड ऑरेंज, ब्लू एंड ऑरेंज ये आपके ऑफिशियल कलर्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं 7 हाई कोर्ट्स के। उनके अगर अपॉइंटमेंट देखें, मेघालय के कौन बने हैं? जस्टिस S वैद्यनाथन, इलाहाबाद के जस्टिस अरुण भंसाली, गुवाहाटी के जस्टिस विजय बिश्नोई, ओडिशा के जस्टिस चक्राधरी शरण सिंह, उत्तराखंड के जस्टिस रीतू बहारी, राजस्थान के जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव एंड पंजाब एंड हरियाणा के जस्टिस गुरमीत सिंह सांधीवालिया, राइट। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। IIRF की रैंकिंग आई जहाँ पे टॉप MBA कॉलेजेस के बारे में बात की। IIM अहमदाबाद ने रैंक किया फर्स्ट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस कैटेगरी। देन इनकॉइस के द्वारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया गया, 25 ईयर्स सेलिब्रेट किए गए। एंड इनके द्वारा न्यू सैटेलाइट डाटा फैसिलिटी एंड स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प को लॉन्च किया गया। मुकेश अंबानी ने टॉप किया अमंग इंडियंस एंड रैंक्ड सेकंड ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024। एक्सिम बैंक ने रिसीव किया 9,000 करोड़ के करीब रुपए फ्रॉम MEA आफ्टर इन्वोकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज। क्रिसिल के द्वारा रिपोर्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी बाय ऑलमोस्ट एन एवरेज ऑफ 6.7% बिटवीन 2024 से 2031। नोगोलो मुम्बा
उनको अभी इंटर्म प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है नामीबिया का। देन चाइना ने लॉन्च किया जियोलॉन्ग 3 यूजिंग, और जियोलॉन्ग 3 रॉकेट ने 9 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाएगा। एंड लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से 11 जीली सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी ने रिसीव किया फर्स्ट 25T BP टग, जो कि है यार्ड 305 महाबली। ऐसे 3 यार्ड और डिलीवर किए जाएंगे, करेक्ट, मतलब टोटल 3 यार्ड डिलीवर किए जाएंगे, इसके अलावा 2 और। देन इंडियन नेवी ने कमीशन किया सर्वे वेसल लार्ज शिप INS संधको इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। CDS अनिल चौहान ने अनवेल की एक बुक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट डिफेंस लेट फेस्ट इन पुणे महाराष्ट्र। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लॉन्च की एक बुक ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा बाय कुलदीप चंद अग्निहोत्री। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया अपॉइंटमेंट टू 7 हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस टू 7 हाई कोर्ट्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। किस बैंक ने या विच बैंक हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू ऑफर EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज अभी ऑफर की गई हैं किसके द्वारा? तो HSBC इंडिया के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज को ऑफर किया गया। EBG होता क्या है? EBG बेसिकली एक डिजिटल मेथड होता है आपका बैंक गारंटी प्रोवाइड कराने का। इसमें क्या होता है, बैंक आपके जो भी बेनिफिशियरी है उसकी बेसिस पे यहाँ पे गारंटी लेता है कि जो पर्सन है वो यहाँ पे अपनी पेमेंट फुलफिल करेगा, ये गारंटी बैंक लेता है, करेक्ट। तो ये आपकी बैंक गारंटीज होती हैं। तो अब कौन सा वो पहला फॉरेन बैंक बना जो कि ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज? वो है HSBC इंडिया। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया गिफ्ट सिटी का IFSC रजिस्ट्रेशन। तो वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी जिन्होंने रिसीव किया है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, राइट। ये वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी गिफ्ट सिटी में जिनको IFSC रजिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। एंड ये अपना ऑपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे इंडिया में। नेक्स्ट, SEBI unveiled a new format for scheme information document of asset management company. The new norms are recommended by Mutual Fund Association Committee and will come into force from dash. तो ये जो SID है ना, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली ये क्या है कि जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी स्कीम की, उसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे एसेट को एलोकेट किया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट किधर किया गया है, रिस्क उसमें कितना रहेगा, कौन फंड को मैनेज कर रहा है, उसकी फीस कितनी रहेगी, एक्सपेंस रेशो क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे SID में प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए नए नॉर्म्स अभी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के द्वारा लॉन्च किए गए और इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2024 से ये नए नॉर्म्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट QR कोड यूजिंग द डिजिटल e-Rupee ऐप? तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है, किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं? तो वो है ICICI बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके उसे e-Rupee से यहाँ पे डिजिटल रूपी से पेमेंट ईजिली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी एंड इससे डिजिटल रूपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद ixigo टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ixigo के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेज एंड होटल्स। एंड यहाँ पे Tier 2 एंड Tier 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो वो है रशिया, राइट। रशिया ने अभी रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे एज वेल एज जो 15,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं रशिया में, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने अभी एक टास्क फोर्स फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। तो IRDAI ने अभी एक टास्क फोर्स सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मीना कुमारी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। ये जो टास्क फोर्स है
जो मिस, ये इसका काम क्या रहेगा कि जो भी मिस सेलिंग हो रही है एंड जो फोर्स सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बाय द बैंकरेंस चैनल, उसको रिव्यू करना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए वेज सजेस्ट करना, एंड उसकी एफिशिएंसी को, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसीज को कैसे बेटर किया जा सकता है, इसीलिए ये एक टास्क फोर्स सेटअप की गई जो कि उनकी चेयरमैन रहेंगी मीना कुमारी। नेक्स्ट आ जाता है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ सुपर कैश प्लान एंड अ न्यू नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। तो किस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया और जिसका नाम रहेगा सुपर कैश प्लान, वो है एगिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया गेन। गेन क्या है, गारंटीड एश्योर्ड इनकम, करेक्ट। इन्होंने लॉन्च किया, ये एक न्यू गारंटीड इनकम प्लान है फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये गेन को लॉन्च किया गया, करेक्ट, जो कि एक न्यू गारंटीड इनकम प्लान रहेगा फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये है इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया किसके साथ, NPCI के साथ, टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रिलीज्ड इन नवंबर, विच स्टेट emerged एज द लीडर इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर क्वार्टर फिजिकल ईयर, जो कि सेकेंड क्वार्टर था फिजिकल ईयर 24 के लिए पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो रहेगी महाराष्ट्र, ये टॉप पे रही है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाती है गुजरात, फिर तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी, गुजरात के बाद आ जाता है कर्नाटका। नेक्स्ट, in November, the US International Development Finance Corporation has announced an offer of dash to Adani Ports-led Combo West International Terminal Private Limited to support the development of the deep water shipping container terminal in the port of Colombo, Sri Lanka. तो कितना अमाउंट यहाँ पे US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया टू अडानी पोर्ट्स लेड कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके, शिपिंग कंटेनर्स डेवलप किए जा सके, पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके, एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने की बात की गई। तो $553 मिलियन यहाँ पे कमिट किए गए। इससे पहले 2021 में अडानी पोर्ट्स ने एक $700 मिलियन का भी अग्रीमेंट साइन किया था विद SLPA श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके फॉर द टर्मिनल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, नेम द बैंक या ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट इन्वायरमेंट फैसिलिटी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू द नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड। आई रिपीट, वो कौन सा बैंक या ऑर्गेनाइजेशन है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड को, तो वो रहेगा कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने $400 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो इसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट पीरियड रहेगा वो रहेगा 12 साल का। नेक्स्ट, which of the following companies has not received SEBI approval to raise funds through initial public offering in November। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी अप्रूवल नहीं मिला था कि वो IPO के थ्रू फंड्स रेज कर सके, वो है गैनवेज एंटरप्राइज, बाकी सबको मिला था। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया UPI लाइट टू अलाउ यूजर्स टू मेक स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन विदाउट यूजिंग UPI पिन। तो UPI लाइट फीचर लॉन्च किया गया था, राइट, एंड इसमें क्या था कि आप बिना इंटरनेट की मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे थ्रू UPI लाइट फीचर। किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बैंक ने इसको लॉन्च किया, फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये UPI लाइट फंक्शनैलिटी लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा सितंबर 2022 में, एंड फेडरल बैंक वो पहला बैंक बना जिन्होंने लॉन्च किया दिस UPI लाइट फीचर, जो उनके बैंक कस्टमर्स को अलाउ करता है टू मेक डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन विदाउट यूजिंग UPI पिन। Next, name the company that has recently became the second Indian startup to achieve unicorn status।
यूनिकॉर्न क्या होता है? जब एक कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन टच हो जाती है, करेक्ट। तो वो सेकंड यूनिकॉर्न इंडिया का कौन सा बना 2023 में? वो है इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड। इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड सेकंड इंडियन यूनिकॉर्न बन गया, वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन इन 2023। और पहला यूनिकॉर्न कौन सा था पूछा जाए तो ज़ेप्टो। नेक्स्ट, आरबीआई ने बार किया डैश कंपनी को फ्रॉम सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स अंडर देयर ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड प्रोडक्ट्स। तो आरबीआई ने बायरेट कर दिया बजाज फाइनेंस लिमिटेड को फ्रॉम सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स अंडर इट्स ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड प्रोडक्ट्स। Next, name the bank that has recently launched 2 digital gold loan schemes for retail segment and agriculture segment. बताइए, नेम द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया 2 डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम्स फॉर रिटेल सेगमेंट एंड एग्रीकल्चर सेगमेंट। वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक तो पीएनबी और डिजिटल गोल्ड स्कीम्स 2 लॉन्च की हैं, एक तो है पीएनबी गोल्ड लोन फॉर रिटेल सेगमेंट और दूसरा है पीएनबी गोल्ड लोन फॉर पीएनबी स्वर्णिम फॉर एग्रीकल्चर सेगमेंट। ये है रिटेल सेगमेंट के लिए, ये है एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टू ईज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज। आई रिपीट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टू ईज एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज? वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, which of the following personalities have been appointed as the directors of Jio Financial Service Limited after the approval granted by RBI? तो ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया, इन तीनों को यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, बीमा लोकपाल डे 11 नवंबर को हम बीमा लोकपाल डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने अनाउंस किया कि उनके पास जो भी इंश्योरेंस कंप्लेंट्स आई हैं 2022-23 में, उसमें से इन्होंने 92.28% कंप्लेंट्स को क्लियर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। राइट, तो नंबर मार्क करेंगे 92.28। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स? तो वो है कर्नाटका बैंक। करेक्ट, कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स, और एचडीएफसी लाइफ 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया 6.5 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड लोन अग्रीमेंट विद ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ये एग्रीमेंट साइन। $6.5 मिलियन का सीनियर सिक्योर्ड लोन अग्रीमेंट रहेगा, एंड जो फाइनेंसिंग है ये इंक्लूड करता है $3.25 मिलियन फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी सर्व फ्रॉम द क्लाइमेट इनोवेशन फंड, सीआईडीएफ फंड से भी 3.25 इसमें से इंक्लूडेड रहेगा। राइट, इनका एम क्या रहेगा कि गैसलेस कुक स्टोव्स को यहाँ पे रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अंडर दिस, इस अमाउंट में से परचेज करके, ताकि एक तो क्योंकि गैसलेस कुक स्टोव्स होंगे, स्मोकलेस होंगे, तो उसमें से जो एमिशन होगी ना वो कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 22.9 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन देखने को मिल सकती है फ्रॉम दिस गैस स्टोव्स, जो कि यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट गैस स्टोव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू द रूरल एरियाज। इससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया लोन पैकेज ऑफ $500 मिलियन फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो $500 मिलियन, करेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया लोन पैकेज ऑफ $500 मिलियन फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। फिर ये जो अमाउंट यूज़ किया जाएगा बेसिकली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, करेक्ट, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया $125 मिलियन फाइनेंसिंग पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया? तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड।
करेक्ट। L&T अगर आपको याद हो तो L&T वो कंपनी है जो कि रामलला मंदिर बना रही है अयोध्या यूपी में। एंड L&T ने ही अभी रिसेंटली $125 मिलियन का पैक्ट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ग्लोबल फंड के साथ एक MOU साइन किया ताकि एड्स, TB एंड मलेरिया के खिलाफ हम जंग छेड़ सके एंड इनको एलिमिनेट कर सके फ्रॉम अर्थ। मूविंग ऑन, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद UK एक्सपोर्ट फाइनेंस ताकि फाइनेंसिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स एंड UK से जो भी हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग को हेल्प की जा सके, राइट। तो ये कौन सा बैंक रहेगा, किसके द्वारा, इंडसइंड नहीं, कौन सा बैंक रहेगा ये, आई करेक्ट माई सेल्फ, जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ये रहेगा HSBC इंडिया, राइट। HSBC इंडिया ने अभी रिसेंटली UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ताकि 100 मिलियन पाउंड्स का एक फंड सेटअप किया जा सके ताकि इंडिया से जो भी हम MSMEs या कॉर्पोरेट जो भी इंपोर्ट कराते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम UK उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। तो वो है इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के साथ टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली NCR रीजन। इससे क्या होगा, किसी भी स्टेशन पे जाके आप UPI QR कोड से इजीली स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल रुपी मेथड से, राइट। इससे डिजिटल रुपी का अडॉप्शन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, RBI ने सस्पेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ किस कोऑपरेटिव बैंक के फॉर 1 ईयर एमिड देयर पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो अबुदया कोऑपरेटिव बैंक इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया RBI के द्वारा 1 साल के लिए, या फिर हम बोले 12 महीने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज हैव रिसेंटली रिसीव्ड द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ RBI फॉर नॉन कंप्लायंस विद सम ऑफ देयर डायरेक्शंस। तो तीनों IOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सिटी बैंक को यहाँ पर अभी रिसेंटली मॉनेटरी पेनल्टी रिसीव हुई बाय RBI फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो यहाँ पे इन पे पेनल्टी रहेगी 1 करोड़ की, बैंक ऑफ बड़ौदा पे पेनल्टी रहेगी 4.34 करोड़ की एंड सिटी बैंक पर यहाँ पे पेनल्टी रहेगी 5 करोड़ की। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $170 मिलियन लोन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज इन कोची, केरला। तो बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $170 मिलियन लोन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वाटर सप्लाई इन कोची, केरला। ये रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे अर्बन लिविंग को इंप्रूव करने की बात की गई, क्लीन वाटर एक्सेस देने की बात की गई, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की बात की गई, देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को यहाँ पे अपग्रेड करने की बात की गई, पाइपलाइंस को 700 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइंस को अपग्रेड करने की बात की गई, 1,46,000 वाटर मीटर्स को यहाँ पे अपग्रेड करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हीट ब्लास्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल। तीसरा, INS संध्या की अभी न्यूज़ में था, ये किस काइंड का वेसल है। चौथा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबर्स। एंड पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन, थीम क्या रहेगी वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की। तो दोस्तों ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.